배5년 용심 주변은 면진지 자사 파설 완전히 기대 실로 제동부도 지금 나와있는 팀이 용기 대사 셀동대 샤서 이것건데 제대가의 병원으로 제 규定모로 줄라 선배 장초 군세 주기 받침을 아지로 자마리 용기 장원 바히오 자나 빼진도 전 소월 공사 쪽에 쇼진에 자나 용념 내 आएगा Enlightenment to celebrate the 90th birthday of His Holiness, the of CTMC, Venerable Amje Lama of the Tibetan Temple, all the dignitaries present here, my close friend Amit Srivastavji and Madam. I invited them, they were here, so I invited them to this occasion. It is a great honor for me to be here, invited as chief guest for the 90th birthday celebration of Dalai Lama. When I joined this district, I was given gift of this book, The Voice of the Voiceless, written by His Holiness the Dalai Lama. And I happened to read this book, and this book tells 7 decades of struggles by His Holiness the Dalai Lama, starting from such a young age, and his sacrifices for preserving the culture and tradition of the Tibetan people. So his life stands testimony to his perseverance, to his grit, to his determination, and to his undying commitment to values of humanity and to preserve the culture and heritage of Tibetan people. So we are here to celebrate the entering of 90th birthday of such a luminous person, and I wish him a long life and success in his missions and his future endeavors. Thank you. Aligned to the virtuous teachings of Lord Buddha than His Holiness Dalai Lama Ji. Venerable Bhikkhu Sangha, respected Lama Ji, respected Honorable District Magistrate Shri Shashank Shubhankar Ji, who is our Chairman of Bodhgaya Temple Management Committee also. IBC President Venerable Nabang Lama Ji, IBC Secretary Bhikkhu Pragyadeep Bhante Ji, Tibetan Temple's Monk in Charge Amje Lama Ji, and all the distinguished guests who are present here, and very illuminated citizens of Bodhgaya. On this auspicious occasion, as we gather here to celebrate a truly remarkable milestone, the 90th birthday of His Holiness the 14th Dalai Lama, a radiant embodiment of compassion, wisdom and peace in our world, a divine presence in flesh and blood. Leading by the profound example of a simple
yet extraordinary life, His Holiness has touched millions, not only through his teachings but through the grace of his actions. His life is a testament of humility, courage, forgiveness, compassion, and deep spiritual insight. Bodhgaya, the sacred land of the enlightenment of Lord Buddha, has been immeasurably blessed by the many visits and many teachings which he held at Kalchakra ground for the past several years. His deep spiritual connection to this holy site reinforces its eternal role as a symbol of peace, wisdom, and the liberation of all beings. Today, we at Mahabodhi Mahavihar and the Bodhgaya Temple Management Committee, in the presence of its chairman and all the monks of chief monks and all the monks of Mahabodhi Mahavihar, offer our heartfelt prayers for His Holiness's continued good health and long life. We express our deepest gratitude for his selfless service and for the profound impact he has had on our hearts and minds. We join countless devotees across the globe in celebrating this joyous occasion and offer our sincere prayers that His Holiness continues to guide us with his benevolent teachings. He reminds us of the great sages of ancient times, a source of strength and steadfast voice of peace, dialogue and unity. May his wisdom continue to illumine our path now and for generations to come. Thank you very much. Students of the GPL Adarsh School run by this Tibetan temple, I would invite them to perform the welcome dance and the birthday dance, which will be followed by another item by the students of the Gautam Buddha School, Bodhgaya. Then we'll have the cake cutting.
विभाजन्तु सामरोगो विनाशतु माते भवन्तं देवायो सुखी दीर्घायुः भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वोत्थानुभावेन सदा सोऽपि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता समधर्मानुभावेन सदा सोऽपि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता संघसंहानुभावेन सदा सोऽपि साधु 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 आज परम पावन दलाई लामा जी का जन्म दिवस है, 90वां जन्म दिवस है और पूरे भारत में मनाया जा रहा है। यहाँ भी जो टिबेटन मोनेस्ट्री है, यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है जिसमें सभी हमारे लामा और भिक्खु लोग आए थे और जिला प्रशासन के भी लोग शामिल थे, BTMC के भी लोग हैं। तो हर्षोल्लास के साथ इसको मनाया गया है। स्कूली बच्चों ने भी अपनी प्रस्तुति दी है और सभी ने परम पावन दलाई लामा जी के लंबी उम्र और उनके जो मिशन है उसमें सक्सेस की कामना की। होलीनेस 14 दलाई लामा जी के 90 वर्ष का जन्मोत्सव बड़े उत्साह के साथ सारे विश्व में मनाया जा रहा है। बोधगया से और महाबोधि मंदिर से दलाई लामा जी का वर्षों का जुड़ाव है जन्म से ही, और वो हर वर्ष यहाँ आते रहे हैं। और हम सभी हर जगह, आज सुबह भी महाबोधि मंदिर में एक बृहद समारोह के साथ उनकी पूजा की गई थी और आज शाम को भी 5:30 बजे 1000 दीप जलाए जाएंगे, जिसमें जितने भी बोधगया के मोनास्ट्रीज के भिक्षुगण हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। महाबोधि मंदिर के और बोधगया प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यगण भी उसमें शामिल होंगे और हम सब उनकी दीर्घायु के, उनके स्वस्थ जीवन के कामना करेंगे ताकि वो अपने जीवन काल में जो विश्व को शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देते आए हैं, उसकी सतत धारा निरंतर प्रवाहित होती रहे। इसी कामना के साथ आज हम सब यहाँ भी एकत्रित हुए। धम्पद में एक गाथा है, यो हवे दहरो युंजते बुध शासने सोमंग लोकंग प्रभासेति अव्वो मुद्दो व चंद्रमा। कोई भी युवावस्था में अपने आप को बुद्ध शासन में धर्म में लगाता है तो वो ऐसा ही होता है जैसे
बादल से मुक्त चंद्रमा होता है, उसी प्रकार से वो सारे क्लेशों से मुक्त हो जाता है। यो हवे दहरे विपुन शासने सोमंग लोकं पवासे थी। उसके बाद जो लोक में जो क्रोध है, काम है, क्लेश है, उसको कैसे दूर किया जाए, उसके लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। हमें याद है और हम देखते भी हैं कि यंग एज का उनका जो फ़ोटो है, यंग एज का फ़ोटो जो है उसमें हो सकता है कि वो 20 साल 21 साल के होंगे। उस समय से उन्होंने अपने आप को बुद्ध शासन में लगा दिया और उसके बाद अब तक ये बुद्ध शासन में लग कर के हज़ारों करोड़ों लोग जो दुखी लोग थे, जो माने बेचैन लोग थे, उनको उन्होंने रास्ता दिया और हज़ारों लाखों के करीब आज उनका फॉलोअर है। ये निशानी है कि जो भी अपने आप को यंग एज में धम्म में लगा देता है, वो हज़ारों करोड़ों लोगों के लिए एक नया मार्ग वो देता है। और हमारा जो भारत की भूमि है, वो भारत की भूमि अपने जो है, जो गेस्ट हैं, जो अपने लोग हैं या जो और भी लोग हैं, बाहर के भी लोग हैं, सबको गले लगाने के लिए तैयार रहता है। जिस समय ये आए उस समय जो है कांग्रेस की पार्टी थी, जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद थे, सबने उनको गले लगाया और अपनी भूमि में उनको रहने का स्थान दिया, पूरा का पूरा स्थान दिया। उसके बाद फिर जनता पार्टी आई, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आई। अब तक का इतिहास ये रहा है कि परम पूज्य दलाई लामा को जो यंग अवस्था में से आए थे, आज 90 साल उम्र हो गया, हो सकता है कि और भी उनका जीवन हो, तो इतने साल तक लगातार बिना किसी कष्ट के ये भारत भूमि ने उनको अच्छे ढंग से रखा है। क्योंकि भारत और भारत तिब्बत या जितने बुद्ध वर्ल्ड हैं, उनसे हम लोगों का एक गहरा संबंध है। तो ये दर्शाता है कि जो कुछ भी माने कि जो तकलीफ में हो, उसे हमें सहायता करनी चाहिए। ये भारत भूमि की अपनी खासियत है। आज हम लोग 90 सालवां जन्मदिन यहाँ मना रहे हैं, ये तिब्बतन टेम्पल में, और इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। आप सब जो आए हैं, आप सबका भला हो, कल्याण हो, यही हम मंगल कामना करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, सभी मीडिया फ्रेटर्निटी से आए हैं, बहुत कष्ट कर रहा है आप लोग, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए चाहते हूँ। और हमारा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट काउंसिल की तरफ से जितने भी हैं, हमारा प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, मैं एडिशनल सेक्रेटरी, यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट हैं। आज हम लोग ये बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, आज ओकेशन एक 90th बर्थडे है, हिज ऑनेनेस 14 दलाई लामा जी का जन्मदिन है। पूरा वर्ल्ड में, पूरा भारत में, सिर्फ पूरा वर्ल्ड में मना रहे हैं। अभी हम लोग लाइव देख रहे थे धर्मशाला में, साथ में जितने भी हम लोग मना रहे हैं। आज यहाँ पर बोध गया में, ये बुद्ध की धरती है, यहाँ पर हम लोग इंटरनेशनल बुद्धिस्ट काउंसिल ऑफ बोध गया ने ऑर्गेनाइज़ किया है। अभी डीएम साहब और जितना भी हमारा बीटीएमसी का सेक्रेटरी, सारा बोध का जितना भी इंटरनेशनल मॉनेस्ट्री इंस्टीट्यूशन है, सब लोग आकर हम लोग अभी जस्ट एक केक काटे हैं गुरु जी का, कि लंबा उम्र हो, गुरु जी का स्वास्थ्य अच्छे हो बोलकर। तो यही बोलना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सारा मीडिया फ्रेटर्निटी को। पावन आदरणीय दलाई लामा जी के 90वां जन्मदिन के अवसर पे तमाम बोध गया जनता जनार्दन के तरफ से हमारे पूजनीय दलाई लामा जी को बहुत बहुत शुभकामना। दलाई लामा जी का आज जन्मदिन के शुभ अवसर पे हम लोग तिब्बतियन मंदिर में आए हैं और भगवान बुद्ध जो ज्ञान प्राप्त हुआ, भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्त बुद्ध की नगरी बोध गया में हुआ, और यहाँ से जो उनके विचार प्रकट हुआ, भगवान बुद्ध के जो भी जनता जनार्दन के आलोक में विचार आए और उस पे अमल करते हुए अपना ज्ञान प्राप्त कर किए, और उसी के पद चिन्हों पे हम सबों के पूजनीय दलाई लामा जी उन्हीं के बनाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। भगवान बुद्ध की सोच था
सभी के साथ मिलजुल करके जो भी समस्या है वो किस प्रकार से निष्पादन हो, उसी प्रकार से हमारे दलाई लामा जी भी कार्य कर रहे हैं। आज कलयुग का ज़माना चल रहा है और इस कलयुग के जो चल रही है वातावरण जो बन रहा है, अगर देखा जाए तो कलयुग के भगवान हमारे पूजनीय दलाई लामा जी हैं, इसमें दो मत नहीं है। आज पूरे ही हिंदुस्तान ही नहीं, बोध गया ही नहीं, विश्व के मानचित्र पे माननीय दलाई लामा जी का नाम सुनहरे अक्षरों में जाना जा रहा है। भगवान बुद्ध का सोच था सत्य के मार्ग पे चलना। सबसे कमज़ोर जो लोग थे उनको उत्थान करना, इसी प्रकार से हमारे दलाई लामा जी काम कर रहे हैं। हमें गर्व होना चाहिए बोध गया के वासियों को कि हर वर्ष की तरह इस बार भी हमारे बीच में दलाई लामा जी आए, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। मैं कामना करता हूं पूरे बोध गया वासियों के तरफ से, जनता जनार्दन के तरफ से, सारे विश्व के जो सत्य अहिंसा पे चलने वाले उनके तरफ से कि ये हमारे दलाई लामा जी उनका स्वास्थ्य अच्छे रहें और बोध गया के धरती पे जो ज्ञान, अपना जो ज्ञान है वो बांटने का काम करें। के बाद